Of a triangle. Let's begin with this session now. We very well know that if ABC is a triangle, I'll say in triangle ABC, angle A plus B plus C is equal to pi radian, that is 180 degree, right? सही है ना? तो what will be A plus B is equal to pi minus C, 180 minus C, correct na? And if I want to find out sine of this, that will be sine of this, no? So what is sine of pi minus theta? What is sine of pi minus theta? Second quadrant. Sine positive. X-axis. Sine will remain sine. So this will be sine theta. सही है? So इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? This will give me. Therefore this is sine C. So sine of A plus B is equal to sine C. Any doubts about this? Is this clear to all? ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन सी। और इसी प्रकार हम दूसरे भी लिख सकते हैं, जैसे कि सिमिलरली साइन ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन ए एंड साइन ऑफ ए प्लस सी इज इक्वल टू साइन बी। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, so well that was the first formula here. ठीक है, इसी प्रकार और भी कुछ फॉर्मूले हम यहाँ पर, अब मैं cos के लिए लिखता हूँ cos. So what will be cos of b a plus b? Cos of a plus b will be cos of pi minus c. So tell me the formula for cos of pi minus theta. ASTC, sine positive, cos is negative and cos will remain sum. So this will be minus cos theta. Yes, correct? तो ये क्या बन जाएगा बताइए? So this will be therefore cos of a plus b is equal to minus cos c. Any doubts about that? I'll put it in the box. ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला याद आप रख सकते हो या जब चाहे आप उसको डिराइव भी कर सकते हो। ठीक है, I'll not prefer to remember this. Instead I'll derive it whenever I'll require it, क्योंकि बहुत सिंपल सा है। What will be cos of b plus c is equal to minus cos a, and what will be cos of a plus c minus cos b. Is this okay? ठीक है, अब हम अगले फॉर्मूले के लिए चलते हैं। So that was about sin and cos. अब मैं हाफ एंगल्स की बात करूंगा। हाफ एंगल्स की मतलब यहाँ पर मैं बोलूंगा इट बी a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। सो a प्लस बी बाई टू इज पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। सही है? सो व्हाट विल बी साइन ऑफ दिस? विल बी साइन ऑफ दिस। नाउ आई वांट टू राइट डाउन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा। सो दैट इज cos थीटा, करेक्ट ना? तो ये क्या बन जाएगा? therefore sin of a plus b by 2 is equal to cos of c by 2. Is this okay? Any doubts about that? Is that clear? ठीक है, so let me put it in the box here. Is that okay? Similarly, what will be sin of b plus c by 2? Will be cos of a by 2. Sin of a plus c by 2, cos of b by 2. Is that clear? ठीक है, इसी प्रकार अभी मैंने साइन का फाइंड आउट किया, now I'll find it out for cos. So will be cos of a plus b by 2. क्या आएगा? It will be cos of pi by 2 minus c by 2. Now we know the formula cos of pi by 2 minus theta
इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, cos changes to sin. Therefore what will be cos of a plus b by 2 is equal to sin of c by 2, isn't it? और इसका अगर मैं बॉक्स डाल दूं, सिमिलरली आई कैन राइट डाउन द रिमेनिंग टू ऑल्सो. क्या होंगे बताइए? सिमिलरली cos of b plus c by 2, correct, is equal to sin of a by 2, and cos of a plus c by 2 is going to be sin of b by 2. Is that okay? Any doubts there? So we'll be using this formula while solving the next exercise. Okay, ये formula हम use करेंगे while solving the next exercise. Sin of a plus b is sin c, cos of a plus b is minus cos c. इसमें sin change हो रहा है बस, और यहाँ पर sin changes to cos, cos changes to sin. Is that clear? ठीक है. बाकी tan के लिए कोई जरूरत नहीं फॉर्मूले की, will not need that. So with that I'll start with the exercise. Exercise 3.5. Let's begin. Exercise 3.5. So let's begin. I know that in triangle ABC a plus b plus c is pi, we have to show that cos 2a plus cos 2b plus cos 2c is equal to, ये मेरा RHS है. This is the RHS that I want to prove. Well, first of all I'll club these two together. इन दोनों को मैं इकट्ठा करता हूँ, ठीक है. और यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला यूज करूँगा cos c plus cos d, which is 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, है ना? So let me use that formula. ये क्या बन जाएगा? This will become 2 cos 2a plus 2b by 2 into cos of 2a minus 2b by 2 plus cos 2c. So that will be 2 times cos of 2 common 2 cancel, cos of a plus b, correct, into cos of a minus b. और ये जो cos 2c है, cos 2c, इसके लिए मैं एक फॉर्मूला यूज करना चाहता हूँ cos 2 थीटा का. cos 2 थीटा is 2 cos square थीटा minus 1. समझे क्या? 2 cos square थीटा minus 1. तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर? प्लस 2 cos square c minus 1. ठीक है. अब ये जो cos of a plus b है, what is cos of a plus b is equal to, अभी हमने माइनस cos c, करेक्ट है ना? अभी हमने देखा, करेक्ट ना? तो इसके जगह पर मैं लिखूंगा माइनस cos c, और बाकी जो है एज इट इज आएगा, मतलब ये 2 और ये cos ऑफ a माइनस b और ये 2 cos स्क्वायर c माइनस 1. अब इसमें से मैं माइनस 2 जो है, माइनस 2 और cos c कॉमन ले लूंगा. गौर से देखिए, अगर मैंने माइनस 2 cos c अगर कॉमन लिया तो क्या मिलेगा? गौर से देखिए और मुझे बताइए क्या मिलेगा. माइनस 2 cos c अगर मैंने कॉमन लिया तो ये जो टर्म है इसमें से माइनस गया बाहर, तो यहाँ पर प्लस आएगा. सो दिस इज सिंपली cos ऑफ a माइनस b. सही है. और यहाँ से माइनस था नहीं, तो मैंने एक माइनस बाहर निकाला तो एक माइनस बचेगा. यस और नो? तो ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, करेक्ट ना? और अंदर बचेगा cos c. यू सी, माइनस 1. एनी डाउट्स अबाउट दैट? इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है. अब देखिए, इस माइनस cos c इज इक्वल टू cos ऑफ a प्लस b. यहाँ पर मैं दोबारा ये जो माइनस cos c है इसके जगह पर मैं लिखूंगा
प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी। इज दैट ओके? ठीक है ना? और बाकी सब कुछ एज इट इज आएगा, मतलब कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस वन एंड दिस इज माइनस टू कॉस सी, दैट इज इक्वल टू, अब ये क्या आएगा? कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, दिस इज गोइंग टू बी, व्हाट इज दिस गोइंग टू बी? टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए इंटू कॉस बी, सही है? और ये माइनस टू इंटू कॉस सी तो एज इट इज आएगा माइनस वन, नो दैट इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा? माइनस वन माइनस फोर कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, सही है? दैट इज इक्वल टू आर एच एस। इज दिस क्लियर टू ऑल? यही मुझे प्रूव करना था, क्योंकि ये टू इंटू टू फोर हो जाएगा, माइनस फोर, और ये माइनस वन, और वही मुझे प्रूव करना है, माइनस वन माइनस फोर कॉस ए कॉस बी कॉस सी। इज दैट क्लियर? एनी डाउट्स अबाउट दैट? ओके, अब देखिए ये जो मैंने अभी अभी प्रूव किया उसी तरह का है थर्ड क्वेश्चन, लेकिन वो हाफ एंगल फॉर्म में है। चेक करिए, इट्स द सेम अप्रोच फॉर द थर्ड क्वेश्चन, but it's in half angle form. Do you see that? Do you see that? Okay, सेम क्वेश्चन है, लेकिन हाफ, यहाँ पर डबल एंगल में था, 2a 2b 2c a b c, इधर a b c और a by 2 b by 2 c by 2 ऐसा है। समझ में आ गई बात? तो लेट्स वर्क इट आउट नाउ, लेट्स वर्क इट आउट। क्या आएगा बताइए ये? I'll start with the LHS. Let's start with the LHS. क्या आएगा? cos A प्लस cos B माइनस cos C। तो पहले तो मैं इन दोनों को क्लब करूंगा, क्या आएगा बताइए? दिस इज 2 cos A प्लस B बाई 2 इंटू cos A माइनस B बाई 2, इजंट इट? और ये जो cos C है ना, इसके लिए मैं हाफ एंगल फॉर्मूला, व्हाट इज cos थीटा इज इक्वल टू, इट इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, करेक्ट ना? तो ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 2 cos स्क्वायर C बाई 2 माइनस 1, 2 cos स्क्वायर C बाई 2 माइनस 1। इज दिस ओके? एनी डाउट्स अबाउट दैट? ठीक है, अब देखिए ये जो फॉर्मूला है फॉर cos ऑफ a प्लस b बाई 2, व्हाट इज cos ऑफ a प्लस b बाई 2? इट इज एक्चुअली हाफ एंगल में cos चेंजेस टू sin एंड दिस इज sin c बाई 2, है ना? अभी अभी हमने प्रूव किया था ना, आप टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए चाहिए तो इसके यहाँ पर मैं लिखूंगा sin ऑफ c बाई 2। अगर मुझे sin c बाई 2 यहाँ पे मिल रहा है, sin c बाई 2, this is 2 times sin c by 2 into cos of a minus b by 2। अच्छा, और यहाँ पे मुझे थोड़ा अलग वाला फॉर्मूला, साइन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा मुझे। क्या फॉर्मूला होगा साइन वाला? इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2, ये वाला आएगा। सो दिस इज माइनस 1, माइनस 1 को तो मैं एंड में लिखता हूँ, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2 माइनस 1। अच्छा, अब इसमें से 2 साइन c बाई 2 कॉमन आएगा, करेक्ट? तो क्या मिलेगा? 2 तो यहां से मैंने 2 साइन c बाई 2 कॉमन लेने के बाद आएगा 2 साइन c बाई 2, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? cos ऑफ a माइनस b बाई 2 प्लस साइन c बाई 2 माइनस 1। बट व्हाट इज साइन c बाई 2 इज इक्वल टू, या I'll substitute this thing over here। तो क्या मिलेगा बताइए? दिस विल बिकम cos ऑफ a बाई 2 प्लस b बाई 2, और ये पहले से जो है वो क्या है? cos ऑफ
a/2 माइनस b/2, सही है, -1 and this is 2 sin of c/2. okay, now this is like, ये क्या है, cos of a plus b और cos of a minus b plus cos of a plus b, इस टाइप का हो गया ना, which is equal to cos a to टू cos a cos b ना. अगर यहाँ पर बाई टू होगा, बाई टू होगा, बाई टू होगा, तो हर जगह पर बाई टू हो जाएगा. आई होप यू गेट दैट. So what is this going to become? This is 2 sin c/2 into cos of a/2 into cos of b/2 minus 1. सही है. And that's what. अब ये 2 into 2, अब अच्छा यहाँ पे 2 रह गया लगाना, ये 2 into 2 4 हो जाएगा. So this will become 4 times cos a/2 cos b/2 into sin c/2 minus 1 and that is equal to RHS. सेम तरीके से, सिर्फ यहाँ पर हमने साइन वाला फॉर्मूला यूज किया और यहाँ पर कॉस वाला फॉर्मूला यूज किया था हमने cos 2 थीटा का. इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है. अगला क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन आई गो फॉर. सेकंड. अब देखिए सेकंड क्वेश्चन अगर मैं देखूं, द सेकंड क्वेश्चन इज सिमिलर टू, कौन सा क्वेश्चन? द सेकंड क्वेश्चन विच इज कंसिस्टिंग ऑफ साइन a, sin b, sin c. और ये आई थिंक सेकंड नहीं, फोर्थ एंड फिफ्थ दे आर सिमिलर, नॉट सेकंड. फोर्थ एंड फिफ्थ दे आर सिमिलर. चेक है ना. यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर a/2, साइन स्क्वायर b/2, तो ये दोनों सिमिलर है, जैसे ये और ये सेम थे ना, उसी प्रकार. तो आई गो फॉर द सेकंड नाउ. उसके बाद फिर ये दोनों हम सॉल्व करेंगे. तो लेट्स बिगिन नाउ. दिस विल गिव मी व्हाट? बोलो कैसे करेंगे? I'll start with the LHS. Sin A plus sin B plus sin C is equal to, क्या आएगा बताइए, कैसे करेंगे? यस, I'll use the formula for sin C plus sin D. Absolutely correct. I'll club this together and this is sin C plus sin D. ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. So this is 2 sin A plus B/2 into cos A minus B/2 plus sin C. sin C के लिए भी मैं कुछ लिख सकता हूँ. sin C के लिए मैं लिखूंगा हाफ एंगल फॉर्मूला, that is 2 sin C/2 into cos C/2. ठीक है. अच्छा, बाय द वे हमने ये, हमारे पास और एक फॉर्मूला यहाँ पर मैं जो अप्लाई करने वाला हूँ कि व्हाट इज साइन ऑफ A plus B/2 इज इक्वल टू cos ऑफ C/2. करेक्ट ना. ये बन जाएगा cos ऑफ C/2 और दिस इज 2, this is cos of A minus B/2 plus 2 sin C/2 into cos of C/2. यहाँ से कुछ कॉमन जाएगा बाहर, this is to be taken common, ये 2 और ये, तो क्या आएगा ये 2 cos of C/2. तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, cos of A minus B/2 प्लस साइन ऑफ C/2. लेकिन हमें ये अच्छे से पता है कि दिस साइन ऑफ C/2 is nothing but, what is sin of C/2? Yeah, this is cos of A plus B/2. सही है ना. I'll just substitute this over there. तो क्या मिलेगा, this is cos of A plus B/2. Is that understood? ठीक है. नाउ ये है फॉर्मूला कौन सा, cos of A plus B plus cos of A minus B.
cos of a plus b plus cos of a minus b is to cos a into cos b. तो अप्लाई कीजिएगा, ये बन जाएगा 2 cos of c by 2 into 2 cos of a by 2 into cos of b by 2. Now the answer will be 4 times cos of a by 2 into cos of b by 2 into cos of c by 2. Is that RHS? I think it is. Is this okay? That is equal to RHS. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. फोर्थ क्वेश्चन. Let me start with LHS. Sin square A plus sin square B plus sin square C. कैसे करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला है जो हम cos 2 थीटा के लिए यूज कर सकते हैं. व्हाट इज cos 2 थीटा इज इक्वल टू, और 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2. इज इट नॉट? सही है ना? तो ये फॉर्मूला मैं यहां पर यूज करूंगा इन तीनों के लिए, रादर सिर्फ इन दोनों के लिए यूज करूंगा, तीसरे के लिए बाद में डिसाइड करूंगा यूज करना है. तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम साइन स्क्वायर ए की जगह पर आएगा 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 cos 2a, करेक्ट ना? प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 cos of 2b प्लस साइन स्क्वायर c. 1 by 2 plus 1 by 2 is 1. माइनस हाफ कॉमन लिया जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा cos 2a प्लस cos 2b प्लस साइन स्क्वायर c. ऐसा बनेगा. एनी डाउट सो फार? करेक्ट. इसमें 1 by 2 ना, इसे मैं 4 by 2 भी तो लिख सकता हूँ ना. आई मीन नहीं, 2 by 2 तो लिख सकता हूँ ना. ये मैं 1 मतलब 2 by 2. यस और नो? इसमें से अगर मैं हाफ कॉमन ले लेता हूं तो क्या मिलेगा मुझे? 1 सेकंड. cos 2a cos 2b नहीं, ठीक है, लेट इट बी. वन ही रहने दो. यहां पर मैंने 2 cos c प्लस cos d फॉर्मूला यूज करना है. इन दिस केस इफ आई यूज द फॉर्मूला cos c प्लस cos d, तो क्या आएगा? 2 cos 2a plus 2b by 2 into cos 2a minus 2b by 2. Are you understanding that? Yes. और ये हाफ तो एज इट इज रहेगा, और ये 1 भी वैसे ही रहेगा, एंड दिस इज sin square c. You see, this 2 and 2 gets cancelled. करेक्ट है? यहां से भी 2 कॉमन आएगा, कैंसिल होगा, कॉमन आएगा, कैंसिल होएगा. सो दिस इज 1 माइनस क्या आएगा? cos of a plus b into cos of a minus b plus sin square c. Is that okay? Is that clear? Yes. cos of a plus b into cos of a minus b. अच्छा, अब मुझे आप बताइए कि यहाँ पर what is cos of a plus b? Minus cos c. So and what will be minus cos of a plus b? Is it plus cos c? Yes sir. तो यहाँ पर मैं माइनस cos of a plus b के लिए क्या लिख सकता हूँ? प्लस cos c, है ना? अच्छा, और ये 1 will be as it is. This is cos of a minus b. सही है? अच्छा, similarly what shall I write for
1 माइनस साइन स्क्वायर सी ना इज एक्चुअली कॉस स्क्वायर सी। 1 कुछ गड़बड़ कर रहा है यार। हम्म तभी मैं सोच रहा हूँ ये प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक के अंदर। यहाँ पर माइनस है ना रे, आपके बुक्स में क्या दिया है, माइनस है क्या नहीं है? दिस इज माइनस। माइनस दिया है कि प्लस दिया है? अगर माइनस दिया है तो ठीक है, प्लस दिया है तो उसको करेक्ट कर दीजिएगा। सो दिस इज, अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर सी अगर मैं इकट्ठा लिख दूं, इफ आई राइट दिस 1 इसके साथ 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, अगर मैं इसको इकट्ठा लिख दूं, दिस इज प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर सी? इज एक्चुअली कॉस स्क्वायर सी, बराबर है क्या? सो दिस इज प्लस कॉस स्क्वायर सी, और इसमें से मैं कॉस सी कॉमन ले लूंगा फिर, बिकॉज आरएचएस में मुझे कॉस सी चाहिए ना, ऑफ कोर्स चाहिए। सो आई टेक दिस कॉस सी कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस, वंस अगेन कॉस सी के जगह पर मैं लिखूंगा माइनस, कॉस सी के जगह पर मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि एक कॉस सी अंदर बचेगा ना, उसके जगह पर मैं क्या लिखूंगा, माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। नाउ देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दिस कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। क्या फॉर्मूला है? cos of a minus b minus cos of a plus b is equal to 2 sin a sin b. I'll just write it over there. क्या मिल जाएगा? This is cos c into 2 times sin a into sin b, and that's what I want to prove actually. Check करो, 2 sin a sin b cos c. Is that clear? 2 sin a sin b cos c, 2 यहाँ पर पहले लिखा है, इधर 2 बीच में लिखा हुआ है, but it's the same ना, so that is equal to RHS. Any doubts about that? अगला क्वेश्चन, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे मैंने बताया था कि फोर्थ एंड फिफ्थ दे आर ऑफ द सेम टाइप, सो लेट मी सॉल्व दिस नाउ। ये वाला मैं सॉल्व कर लेता हूँ, क्या बनेगा? LHS is equal to sin square a by 2 plus sin square b by 2 minus sin square c by 2 is equal to, बस वही करना है जो अभी हमने किया था सेम। साइन स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला लिखूंगा मैं, बताइए? I'll use the formula for this half angle formula here. What is 2 sin square theta by 2? It is equal to 1 minus cos theta, थीटा, और ये 2 इधर चला जाएगा, ऐसा बनेगा, करेक्ट? ये बनेगा, क्या बनेगा, हाफ 1 माइनस कॉस ए प्लस हाफ 1 minus cos b, and this is minus sin square c by 2. Any doubts about that? अब क्या करेंगे, इसमें से हाफ कॉमन ले लेंगे जी, या तो फिर ये हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, ठीक है ना, और यहां से माइनस हाफ कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, cos a प्लस cos b, दिस इज माइनस sin square c by 2. So what is 1 minus sin square c by 2? Is cos square c by 2, राइट? बराबर है क्या? 1 माइनस इन दोनों को क्लब करके क्या मिलेगा मुझे, हेलो, 1 माइनस साइन स्क्वायर सी बाई 2
इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर सी बाई टू, ठीक है ना। आई जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर, दिस इज कॉस स्क्वायर ऑफ सी बाई टू, और ये जो माइनस हाफ है वो एज इट इज रहेगा, एंड दिस इज टू कॉस सी प्लस कॉस डी, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, सही है, बराबर है क्या। और ये इधर जाएगा माइनस, सही है ना, टू टू गेट्स कैंसिल। अब आप मुझे बताइए व्हाट इज कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू। अरे यार मुझे ये चेंज नहीं करना चाहिए था, वो ऐसे ही रखना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव चेंज दिस, क्योंकि यहाँ पर मुझे वन भी चाहिए है ना, तो आई विल नॉट चेंज इट, आई विल कीप इट एज इट इज। इसको मैं एज इट इज लिखूंगा, क्या बनेगा फिर ये, दिस इज वन और ये है साइन स्क्वायर सी बाई टू, क्योंकि cos ऑफ a प्लस बी बाई टू इज एक्चुअली इक्वल टू साइन सी बाई टू ना, सो आई यूज दिस फॉर्मूला ओवर हियर, ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम वन माइनस साइन सी बाई टू इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी बाई टू माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू, इसमें से साइन माइनस साइन सी बाई टू को कॉमन निकालिएगा, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, कॉस ऑफ a माइनस बी बाई टू प्लस साइन सी बाई टू, लेकिन साइन सी बाई टू की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, कॉस ऑफ a प्लस बी बाई टू, एंड नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉस ऑफ a प्लस बी टू, कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस कॉस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू टू कॉस a कॉस b, अगर यहाँ पर बाई टू है तो हर जगह पे बाई टू लगे, सो दिस इज वन माइनस साइन सी बाई टू इंटू टू टाइम्स cos of a by 2 to cos of b by 2. Is this okay? And that will be RHS. Is that clear? That's RHS. Any doubts about that? समझ में आया सबको? Next question I'll go for. Question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब देखिए सिक्स्थ वाला जो है वो आप मार्क कर सकते हो वहां पे बुक में, 6 and 8 दे आर ऑफ द सेम टाइप, ये डबल एंगल है और ये हाफ एंगल है, ठीक है, 2 tan A tan B, सेम ऑलमोस्ट सेम टाइप के, देखते हैं, सेम टाइप नहीं बोल सकते लेकिन अप्रोच में भी विल बी सेम। आई विल गो फॉर द सिक्स्थ क्वेश्चन फर्स्ट। या अब यहाँ पे ऐसा लगे कि हम LHS से शुरू करना है, तो हाँ ठीक है, पहले हम लिखेंगे वही, क्योंकि मेरे पास tan ऑफ a बाई टू बी बाई टू ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, सो आई से इन ट्राइंगल ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी, इन ट्राइंगल ए बी सी a plus b plus c is equal to 180 degree, therefore what is a plus b is equal to pi minus c, मुझे by 2 चाहिए, so what is a plus b by 2, actually this is pi by 2 minus c by 2 है ना। मैं इसका tan अगर ले लूं तो मुझे इसका भी tan लेना पड़ेगा, सही है। Now what is tan of pi by 2 minus theta, cot theta, tan of pi by 2 minus theta फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस क्यों आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव एंड y axis tan changes to cot, so this is cot theta, yes or no, so that is equal to cot of c by 2, सही है ना। अच्छा नाउ मैं इसको tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला अगर यूज कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज tan ऑफ a बाई टू प्लस b बाई टू, therefore this will give me tan a by 2
प्लस tan b by 2 अपॉन 1 माइनस tan a by 2 इंटू tan of b by 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन tan of c by 2। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, व्हाट आई विल गेट देयर, tan a by 2 इंटू tan c by 2 प्लस tan b by 2 इंटू tan c by 2 इज इक्वल टू 1 माइनस tan a by 2 इंटू tan b by 2। अब ये जो माइनस वाला है वो इधर लेके आइए, तो क्या मिलेगा, tan a by 2 इंटू tan c by 2 प्लस tan b by 2 इंटू tan c by 2 प्लस tan a by 2 इंटू tan b by 2 is equal to 1। Is that equal to, is it what I want to prove? So I don't need to start with LHS, I need to start with this expression। समझ में आ गया, hence proved। समझ में आ गई बात? ओके, अगला क्वेश्चन, I'll go for the next question। तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 को भी अभी ऐसे ही शुरू करता हूँ। I'll go for question number 8 now, जैसे कि मैंने आपको बताया था 8, या फिर 8 आप लोग होमवर्क करेंगे, सेम तरीके से करना है आपको, ये आपको उसी तरीके से करना है, 8 वाला जो है उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। डू नॉट स्टार्ट विद LHS, यू स्टार्ट विद दिस थिंग। आप शुरुआत कहां से करेंगे इसका, यू विल से दैट इन ट्रायंगल ABC A plus B plus C is equal to pi, so what will be A plus B is equal to pi minus C, correct, pi minus C। so अगर मुझे इसको डबल करना होगा तो what will be 2A plus 2B, क्योंकि यहाँ पर 2A 2B है, is equal to 2 pi minus 2C। और अब मुझे इसका tan चाहिए, तो क्या मिलेगा, tan of 2 pi minus C। 2 pi minus C मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ASTC, cos पॉजिटिव, so this is minus tan 2C। क्या समझे, समझे क्या, हेलो, इसके आगे का मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, सेम तरीके से करना है जैसे ऊपर का है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं अभी। 7, अच्छा इन दोनों में कुछ कनेक्शन लग रहा है क्या, हाँ तो कैसे कर सकते हैं फिर बताइए मुझे। I'll start with LHS, so scot of A by 2, the scot of B by 2 plus scot of C by 2 okay, cot of A by 2 plus cot of B by 2 plus cot of C by 2 is equal to cot A by 2 cot B by 2 cot C by 2। बोलिए कैसे करेंगे, इसको भी मैं LHS से नहीं शुरू करूंगा, इसका पहले वाला जैसे था वैसे ही शुरू करते हैं, इसे भी मैं LHS से शुरू नहीं करूंगा, इसके पहले वाला जो था उसी प्रकार करेंगे इसको। तो इन ट्रायंगल ABC A plus B plus C is equal to pi, correct, is equal to pi, therefore मुझे 2A नहीं A by 2 चाहिए ना, so what will be A plus B is equal to pi minus C, so A by 2 plus B by 2 is pi by 2 minus C by 2, correct ना।
मुझे इसका कॉट चाहिए, तो आई विल कंसिडर इट्स tan फर्स्ट. What will be tan of pi by 2 minus c by 2? Cot of c by 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, करेक्ट ना. अब इसे मैं क्या करूंगा, tan of a by 2 plus tan of b by 2 upon 1 minus tan a by 2 into tan b by 2. Okay, so that is equal to cot of c by 2. I'll write this cot of c by 2. इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, मेरे ख्याल से I'll convert everything into tan. तो इसे मैं लिखूंगा tan of a by 2 plus tan of b by 2 whole thing divided by 1 minus tan a by 2 into tan of b by 2 is equal to 1 upon tan of c by 2. और अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा. What I'll get there? बोलिए बोलिए. This is tan a by 2 into tan c by 2 plus tan b by 2 into tan c by 2 is equal to 1 minus tan a by 2 into tan b by 2. इसे मुझे जहां पर पहुंचना है उसके लिए if I'll divide throughout by tan a by 2 into tan b by 2 into tan c by 2. इससे अगर मैं थ्रू आउट डिवाइड करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, प्लीज टेल मी. व्हाट एम आई गोइंग टू गेट देयर, चलिए बताइए. डिवाइड थ्रू आउट, व्हाट वी गेट देयर, दिस. तो यहाँ पे 1 अपॉन tan b by 2 मिलेगा ना. हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट. तो इसमें ये जो है ये दोनों इसके साथ चले जाएंगे, तो इट विल बी 1 अपॉन tan b by 2, राइट. 1 अपॉन tan b by 2, आगे बताइए, प्लस बोलिए. इन दोनों के साथ tan b by 2 tan c by 2 चला जाएगा, तो क्या बचेगा. इसको सेपरेट कर सकते हैं ना हम लोग. हेलो, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन tan of a by 2 बचेगा, और इधर कुछ नहीं कैंसिल होगा, तो इट विल बी 1 अपॉन tan a by 2 into tan b by 2 into tan c by 2 माइनस इसमें क्या बचेगा, tan a by 2 tan b by 2 गया, तो 1 अपॉन tan c by 2. सो दिस इज 1 अपॉन tan of c by 2, करेक्ट. अब क्या रहेगा बताइए, दैट इज इक्वल टू, अब ये जो है माइनस वाला इधर आके प्लस बन जाएगा. सो व्हाट यू गेट देयर, दिस इज cot of a by 2 plus cot of b by 2 plus cot of c by 2 is equal to cot a by 2 into cot b by 2 into cot c by 2 and hence proved. वही मुझे प्रूव करना है. इज दिस क्लियर टू ऑल. देखिए मुझे वही प्रूव करना था. सो दीज आर द क्वेश्चंस. कौन से क्वेश्चंस, द क्वेश्चंस 6, 7 है ना, 8. Year 2, do not start with LHS. Don't start with LHS. ये लिख लीजिएगा. और ये मैंने पार्शियल होमवर्क दिया है और ये कंप्लीट होमवर्क है आपके लिए. एंड दिस एक्सरसाइज इज ओवर. इज दिस क्लियर? एनी डाउट्स अबाउट दैट? समझ में आया सबको ये? मिसलेनियस में मैं क्या क्या सॉल्व करने वाला हूं मार्क करिएगा प्लीज.
So we'll start with the MCQs, multiple choice questions, miscellaneous exercise. Hmm. Hmm. If tan A minus tan B is equal to X, cot B minus cot A is equal to Y, then cot of A minus B. What is X is equal to? Tan A minus tan B. मतलब मतलब sin A अपॉन cos A है ना, sin A अपॉन cos A माइनस sin B अपॉन cos B. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, sin A cos B माइनस cos A इंटू sin B और डिनोमिनेटर में cos A cos B. इज दिस क्लियर? सो बेसिकली दिस x इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन ऑफ A माइनस B डिवाइडेड बाय cos A cos B. सही है. इसी प्रकार अगर हम y के लिए कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, if I'll calculate this for y, what am I going to get there? Yes, y is equal to cot B minus cot A ना, cot B minus cot A. So that is equal to cos B upon sin B minus cos A upon sin A. So that is equal to y is equal to क्या आएगा बताइए, this is cos sin A cos B minus cos A sin B upon sin A sin B. Therefore y is equal to sin of A minus B upon sin A sin B. Any doubts about this? Is this clear to you all? मुझे क्या चाहिए, cot of A minus B. Well, and अगर इनको मैं गौर से देखूं तो what will be y upon x? Y is sin of A minus B upon sin A sin B divided by x is sin of A minus B upon cos A cos B. इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये कैंसिल होगा एंड दिस विल गो अप इन द न्यूमरेटर. तो क्या बन जाएगा, क्या बचेगा बताइए, दिस इज cos A cos B upon sin A sin B. Any doubts about this? Isn't it? Now that is therefore y upon x is equal to क्या आएगा, cot A cot B. Yes or no? cot A cot B. सही है. मुझे चाहिए cot of A minus B. भाई cot of A minus B क्या होता है, consider cot of A minus B. Consider cot of A minus B. That is equal to 1 upon tan of A minus B. बराबर है क्या, that is equal to tan A minus tan B upon 1 plus tan A into tan B. Yes or no? अब ये ऊपर चला जाएगा. So what is this going to give me, 1 plus tan A tan B upon
tan A minus tan B. Any doubt so far? समझ में आ रहा है सबको क्या चल रहा है? ओके इसमें हम्म इसमें अभी मैं आगे इसको आई डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय समथिंग, क्योंकि मुझे इसको कॉट में एक्सप्रेस करना है. आई वांट टू एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ कॉट, तो क्या मिल जाएगा? व्हाट एम आई गोइंग टू गेट देयर? इफ आई डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय tan a tan b, तो क्या मिलेगा? अगर मैं tan a tan b से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लूं तो क्या मिल जाएगा? दिस इज tan a tan b. What do we get there? This will give me 1 upon tan a tan b is actually cot a into cot b, plus tan a tan b upon tan a tan b is 1 divided by tan a upon tan a tan b is cot b minus tan b upon tan a tan b is cot a. Is that understood? Hello? Did you understand that? Any doubts about that? Well, यहाँ पे cot a cot b वो कैसे आ सकता है? cot, yeah, I think we are there. Now what is cot a cot b is equal to y upon x. तो यहाँ पर y upon x बनेगा plus 1 divided by what is cot b minus cot a. I think it is given. ये रहा cot b minus cot a. नहीं y, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर? This is y minus 1. So what do you get there? Let us take the LCM. So this is y plus x upon x divided by y minus 1. तो ये अब उल्टा हो जाएगा. This will become x plus y upon xy minus x times y minus 1. Is that clear to all? X times y minus 1, and that's the answer. X plus y upon x times y minus 1. तो फिर ये क्या बनेगा? x plus y, एक सेकेंड ना, यहाँ पर y minus 1 नहीं, यहाँ पर सिर्फ y है ना. ये दिस इज तो ओनली y, तो क्या बन जाएगा ये? लेट मी जस्ट सिंप्लीफाई दिस. ये बनेगा y plus x upon x upon y. So this will become x plus y upon xy. That's the answer. What is the answer here? ये भी नहीं है, तो चलिए इसको सेपरेट कर लेते हैं. So this will become x upon xy plus y upon xy, and that is equal to 1 upon y plus 1 upon x. That's the answer. और इसीलिए स्टार है. 1 upon x plus 1 upon y. So what is the answer here? C is the answer. Is this clear to all? इतना सिंपल नहीं था ये. Okay, so it was a little difficult. Shall we stop here today?